कि इसकी आवाज़ ज़्यादा तेज आ रही हो बाहर। अच्छा तूने सिटिंग देख ली है, 60 आ जाएंगे? हो जाएगा, पक्का? हो जाएगा। कि 60 लोग आए? We are expecting. आज नई साइड देखा था, अकेले फोन करा था फ्रेंड से, उसके बाद कितनी प्रोफाइल लगा मैंने की, ऐसे बात कर रहा है, कितनी प्रोफाइल लगा? तो आप He has also worked with Credit Suisse and Merrill Lynch. He is extensively working on developing an algorithm trading strategy on statistical arbitrage, automated market making, and basket trading. He has worked across all major Asia Pacific markets, including India, and managed a portfolio of $100 million. He holds a BTech and MTech degree from IIT Bombay. I invite Manish to take over for the workshop. Thank you, Tanuj, and welcome to the Knowledge Builder series, the second of its type, currently being hosted by NSE on the currency and derivative segment, which is slowly but steadily getting a lot of momentum, at least in the Indian market. Am I audible to the last? Yes. Yeah. We keep the session fairly interactive, so please feel free to interrupt me anywhere that you feel that there's a concept which has not been understood, or there is something which is I'm going too fast, too slow. Please feel free to interrupt me anytime in between. To begin the session, basically I would just like to give a brief overview in terms of where exactly the Indian market is standing today. When we are talking about currency derivatives and currency and options segments. Earlier basically Indian market was more in terms of a very tight kind of a scenario when we are talking about currency derivatives and options, because the market was not fairly open. Even the options, for example, has only recently been introduced in the NSE segment and has started becoming liquid. If you talk about all the other major currency pairs like a GBP USD, a Euro USD, a JPY, INR, they have started coming into the picture only in the last 2 to 3 years type of thing in the Indian market. The volumes in terms of USD INR futures, in terms of the options, they have started picking up now pretty rapidly. In the Indian market, currently in the NSE segment we are doing about 17 to 18,000 crore worth of volume in the currency futures segment. Right now, why all of a sudden so much of interest? Well, if you see, as and when the country develops, not only an importer or an exporter is somebody who is interested in how the currency and its derivatives are really working. But everything ultimately which is linked to the economy is at the end of the day related to how a rupee fluctuation is happening. Whether it is an FII trying to put money into the Indian equity market or trying to pull out money from the Indian equity market. Whether it is an exporter, whether it is an importer, whether there are people trying to put NRIs who are outside India and trying to put money into the real estate in the Indian market. Everything is ultimately linked to currency, right? And that's the reason why all of a sudden, as and when you see an economy booming, you see all of a sudden this splurge in terms of the currency volumes taking so much of significance in the Indian market. Not only that, in the Indian market there are a lot of other scenarios which are very peculiar and sort of very different from other developed markets. For example, if you see the interest rate, today India has a bank interest rate. If you see the Indian market, right, in terms of the interest rates, can I use Hindi also? Hindi, English, mix चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आज आप इंडियन मार्केट का सिनेरियो देखते हो, तो इंडिया में आज कोई भी बैंक हम लोगों को अबाउट 10% का इंटरेस्ट रेट देती है, राइट? 9.25, 9.5, 10% काइंड ऑफ एन इंटरेस्ट रेट। इफ यू सी अ डेवलप्ड मार्केट, आज आप डेवलप्ड मार्केट में अगर जाते हो, जैसे कि जापान है या फिर यूरोप है या फिर यूएस है, आप क्या देखोगे कि जापान में बैंक जो है वो 0% इंटरेस्ट रेट है। They don't give any interest, right? अब अगर किसी के पास जापान में पैसा पड़ा हुआ है और उसे अगर उस पर्टिकुलर मार्केट में बैंक से कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या बोले यार इंडिया में अगर मैं अपना पैसा रखूं, राइट, तो मेरे को 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है एज कम्पेयर टू कीपिंग इट इन जापान, मैं उसको इंडिया में क्यों रखूं, राइट? तो यूजुअली क्या होता है कि किसी भी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट काफी हाई होते हैं, ठीक है, तो बाहर से उस कंट्री में पैसे आते हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में पैसे आएंगे फ्रॉम लेट से जापान या फिर यूरोप या फिर यूएस, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट खाली 2% है, 1% है, 3% है, और यहाँ पे अपनी को 10% का 9% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, राइट? तो बेसिकली क्या होता है कि करेंसी की जो फ्लक्चुएशंस होती है, ठीक है, उसका एक मेजर रीजन ये भी होता है कि अगर बहुत सारे लोग इंडिया में अचानक से पैसा डालना चाहते हैं,
राइट, क्योंकि अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10% है और मान लीजिए जापान में 0% है, और बहुत सारे लोग अगर आप इंडिया में पैसा डालना चाहते हैं तो आप क्या देखोगे कि करेंसी की जो वैल्यू है सडनली अप्रिशिएट कर जाए, बिकॉज सबको चाहिए कि भाई मेरे पास रुपी हो, राइट। इफ द डिमांड फॉर रुपी इंक्रीज, जैसे ही आपकी डिमांड फॉर रुपी इंक्रीज होती है वैसे ही आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट कर जाती है, राइट। अभी इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, एक तो एफआईआई लोग इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं। अगर एफआईआई लोग इक्विटी से पैसा निकालते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, जो इंडिया में जो रुपी में जो भी चीज है उसको बेचेंगे और उसको फिर डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे। इसका ये मतलब है कि द डिमांड फॉर रुपी इज डिप्रिशिएटिंग, बिकॉज नाउ आप डॉलर रुपी से वापस उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। अब जैसे जैसे डिमांड फॉर द रुपी डिप्रिशिएट्स, आप क्या देखोगे कि अचानक से अभी जो करेंसी का मूवमेंट आया है 50 से 51, 52, 55, 60 तक चला गया है। द रीजन फॉर दैट इज वन ऑफ द इज कि एफआईआई लोग जो है इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं because of whatever the lack of faith, trust in the market, corruption की न्यूज़ ऑलरेडी पीछे से आ रही है काफी स्ट्रांगली, right? Because of the problem with the Indian economy, लोगों का भरोसा कम होते जाता है और जैसे जैसे भरोसा कम होता है वैसे वैसे वो अपना पैसा पुल आउट करते हैं। तो जैसे जैसे वो अपना पैसा पुल आउट करते हैं रुपी की जो आपकी वैल्यू है वो कम होती जाती है, राइट। सिमिलरली अगर आप बोलोगे कि भाई आज इंडिया में इंटरेस्ट रेट 10% का है, जापान में 0% का है, तब तो लोगों को ज्यादा पैसा डालना चाहिए यहाँ पर, क्यों नहीं डाल रहे? वेल ऐसा हुआ था पहले। आज 2005, 6, 7, 8 में आप देखोगे रुपी कहीं नहीं गया, इट वाज एट अबाउट 48, 49 पे मूव कर रहा था क्योंकि सबने इंडिया में पैसा डाल रखा था। अचानक से क्या हुआ, सबको ये लगने लग गया कि अरे यार मैं भी इंडिया में इन्वेस्टेड हूं, मैं भी इंडिया में इन्वेस्टेड हूं, मैं भी इंडिया में इन्वेस्टेड हूं, सब लोग इंडिया में इन्वेस्टेड। अचानक से जब वो बबल फूटा, जिसको हम लोग बोलते हैं येन कैरी ट्रेड, जिसमें मतलब जापान के लोग पैसा डालते हैं इंडिया में क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट ऊपर है। अचानक से जब वो बबल फूटा तो सब लोग अपना पैसा निकालने लगे। जैसे ही अपना पैसा आप निकालोगे और रुपी की वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, 50 से 55 हो गई, तो आपका 10% तो एक तो आपका रुपी डिप्रिशिएट हो गया। तो आपको जो बैंक में एक्चुअली पैसा मिल रहा था, इंडियन बैंक में जो आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, वो आपका जो है करेंसी एप्रिशिएशन में चला गया। जो आपका करेंसी 50 से 55 चला गया, तो आपका एक्चुअली जितना बैंक में पैसा बना, अगर मैं उसको वापस जापानीज येन में या यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूं, तो क्योंकि अब मेरी करेंसी वीक हो गई है, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली इन रियल टर्म्स डॉलर या येन कम मिलेगा एज कंपेयर टू मुझे जो पहले मिल रहा था, राइट। और बहुत सारे लोग जब ये सेम तरह की ट्रेड करने लगे कि भाई पैसा डालो इंडिया में 10% में मिल रहा है और अब वापस से अचानक से निकालने लग गए, तो आप देख रहे हो अचानक से करेंसी की जो मूवमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। करेंसी अचानक से जो है वीकेन होना चालू हो। सो दीज आर फ्लक्चुएशंस। इस तरह की चीजें बहुत होती है इंडियन मार्केट में कि आप देखोगे कि भाई इंटरेस्ट रेट की वजह से मूव कर रहा है या फिर सडनली एफआईआई क्लोज की वजह से मूव कर रहा है। कल अगर इंडिया में कॉन्फिडेंस फिर से अगर बढ़ने लग गया तो एट सम पॉइंट इन टाइम यू विल सी कि वापस से जो है अपना करेंसी अप्रिशिएट करना चालू करता है, राइट। बट हम लोग यहाँ पे आज बेसिकली हैं टू अंडरस्टैंड कि ये डे टू डे करेंसी फ्लक्चुएशन तो चलती रहेगी, कभी 50 पे, कभी 55 पे, कभी 60 पे, फिर अगेन बैक। हम लोग एज ए ट्रेडर, एज एन आर्बिट्राजर, एज योर रिलेशनशिप मैनेजर फॉर योर क्लाइंट, आप किस तरह से बेनिफिट कर सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किस तरीके से निकालें, राइट। नाउ बिफोर आई गो अहेड और मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूं, यूजुअली क्या होता है कि मैं जब भी कहीं जाके वर्कशॉप लेता हूं और ऑप्शंस के बारे में बात करता हूं या वोलेटिलिटी के बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूजुअली लोग नहीं पूछते हैं बट इट्स वेरी एविडेंट इज द फैक्ट कि ये एग्जैक्टली वोलेटिलिटी होती क्या है, व्हाट इज इन रियल टर्म्स वोलेटिलिटी, राइट। तो मैं 5 मिनट लूंगा आपका ये समझाने के लिए एग्जैक्टली कि ये वोलेटिलिटी होती क्या है, इसको हम लोग मेजर किस तरीके से करते हैं, और ये चीज आज आप करेंसी में किसी भी तरह के करेंसी सेगमेंट में ले लीजिए, डेरिवेटिव सेगमेंट में ले लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई टेक अ स्मॉल एग्जांपल एंड आई एक्सप्लेन दैट। बोर्ड सबको क्लियर देख, मैं बोलता हूं कि इंडियन मार्केट आज मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन, अगर आप इक्विटी मार्केट में जाके किसी से भी बात करते हो, कुछ भी करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं भाई मार्केट क्या लग रहा है, क्या भाव है भाई मार्केट में, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, राइट। लेट अस से कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म का इंडियन इक्विटी मार्केट का चार्ट लेता हूं और प्रिडिक्ट करता हूं कि अच्छा एक साल में मेरे को मार्केट ने 25% रिटर्न दिया, एक साल में 60% रिटर्न दिया, फिर एक साल में -55% रिटर्न दिया, सबको अगर मैं लेके एक एवरेज निकालता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज मैं 2012 की जुलाई में खड़ा हुआ हूं, 2013 की जुलाई तक हो सकता है कि मार्केट 15% ऊपर, राइट।
एक में एक मीडियन एजम्पशन लेता हूं कि मार्केट जो है नेक्स्ट एक साल में 15% ऊपर जाएगा, राइट? अब ये चीज कोई होली ग्रेल तो है नहीं कि 15% ही ऊपर जाए। आप अगर 2008 टाइप सिनेरियो देखो तो मार्केट एक्चुअली 55% डाउन था। 2007 अगर आप देखो तो मार्केट 60% ऊपर था। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 15% बोल दिया है तो मार्केट जो है एग्जैक्टली 15% ही दे, राइट? क्या होता है, यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट की वोलेटिलिटी। अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट की वोलेटिलिटी 20% है, राइट? अगर मैं बोलता हूं कि मार्केट की वोलेटिलिटी 20% है, इसका ये मतलब है कि भाई 15% तो मैंने बोल दिया कि मार्केट एक्चुअली एक साल के अंदर में मेरे को रिटर्न देगा, बट हो सकता है कि 15% से ज्यादा दे या 15% से कम दे, राइट? अगर 15% से मान लीजिए 20% ज्यादा मिलती है मुझे, रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, कितना हुआ? 35, राइट? या फिर हो सकता है कि 15% से मुझे 20% कम दे रहा हूं मार्केट, यानी कि हो सकता है कि एक साल में मेरा रिटर्न -5%, राइट? मार्केट -5 और +35 के बीच में रह सकता है। कंसेप्ट ऑफ वोलेटिलिटी या कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं, वो ये बोलता है कि भाई देयर इज अ 66% चांस कि ये जो आपका मार्केट है ये -5 और +35% के बीच में रहेगा, उसकी चांसेस 66% है। लेकिन ये भी कुछ लिखित नहीं है। अगर आप वापस एक 2008 टाइप सिनेरियो देखो तो एक्चुअली मार्केट -5% डाउन नहीं था और ज्यादा डाउन था, राइट? तो अपन थोड़ा और लेफ्ट में चलते हैं। अगर मैं और 20% नीचे जाऊं, यानी कि -5 से और लेफ्ट हैंड की तरफ आऊं और 20% नीचे, तो कितना हो जाएगा? -25%, राइट? या फिर हो सकता है 35% से इन अ गिवन ईयर मार्केट मुझे ज्यादा रिटर्न दे। अगर मुझे 20% ज्यादा रिटर्न मिलता है तो कितना हो जाएगा? 55। अब आपका कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या वोलेटिलिटी ये बोलती है कि भाई देयर इज अ 95% चांस कि जो मार्केट है वो आपका -25% और +55% के बीच में रहेगा। देयर इज अ 95% चांस। इसको हम लोग 2 सिग्मा इवेंट भी बोलते हैं। 2 सिग्मा क्योंकि आपने 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 20% और फिर वापस से 1 और एक और स्टैंडर्ड डिविएशन 20% आप इस तरफ चले गए, राइट? तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं 20 + 20 40% इस तरफ जाऊं या 20 + 20 40% नीचे की तरफ जाऊं तो 15% के रेस्पेक्ट में द मार्केट कैन गिव मी इधर -25% या +55%, जिसकी मेरी जो चांस है वो 95% प्रोबेबिलिटी में। इस चीज को, इस 20% को जो है लोग वोलेटिलिटी बोलते हैं। और ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि जितनी ज्यादा आपके मार्केट की या कोई भी एसेट क्लास की या डेरिवेटिव्स की वोलेटिलिटी होगी उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। अगर ये चीज मान लीजिए 20% नहीं होती, 25% होती, तो इसका ये मतलब है कि 15% के रेस्पेक्ट में मैं 25 × 2 टाइम्स इस तरफ जा सकता हूं या 25 × 2 इस तरफ जा सकता हूं, यानी कि मेरी वोलेटिलिटी बढ़ गई, राइट? और उसी तरह से अगर ये चीज कम होती, मान लीजिए 20% नहीं होती, 5% होता, तो इसका ये मतलब है कि भाई 15% के रेस्पेक्ट में मैं 10% इस तरफ जा सकता हूं या 10% इस तरफ जा सकता हूं, यानी कि वोलेटिलिटी कम हो गई, मेरा रिस्क जो है वो कम हो गया। आज आप एफडी में पैसा डालते हो, भाई फिक्स डिपॉजिट में कोई पैसा क्यों डालते? आपको क्या लगता है कि फिक्स डिपॉजिट की वोलेटिलिटी कितनी होती है? 0, राइट? तो फिक्स डिपॉजिट जो होती है उसकी वोलेटिलिटी 0 होती है, बिकॉज आपको पता है भाई अगर उसने बोला है बैंक ने कि मेरे को 10% देगा एक साल के अंत में, तो 10% मिलना ही है, उसमें कोई 1% माइनस या 1% प्लस नहीं होने वाला, राइट? तो फिक्स डिपॉजिट की जो आपकी वोलेटिलिटी होती है वो 0 होती है। लेकिन आप अगर मार्केट्स की बात करते हो, आप करेंसीज की बात करते हो, डेरिवेटिव्स की बात करते हो, कोई भी इस तरह के सेगमेंट्स की बात करते हो, तो यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वोलेटिलिटी। इनफैक्ट इन मार्केट्स, किसी भी तरह के मार्केट में आपका रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि वोलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगली बार हम लोग जब भी फाइनेंस पे बात करते हैं, जितना हम लोग रिटर्न के बारे में बात करते हैं उससे ज्यादा लोग पूछते हैं कि भाई तुमने रिटर्न तो बता दिया, अब ये बता दो रिस्क कितना है।
और जब लोग रिस्क के बारे में बात करते हैं वो एक्चुअली पूछते हैं कि भाई वोलेटिलिटी कितनी हो सकती है। बोलते रहो 15% मिल जाएगी, तो उसकी चांसेस कितने हैं। जो चांस की जो बात है वो बेसिकली हमारे वोलेटिलिटी डिसाइड करती है, राइट। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में, जो सिंपल हम लोग इंग्लिश में वोलेटिलिटी बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स में इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोला जाता है, राइट। तो अगर या फिर अगर बहुत ज्यादा मैथमेटिकल होता है तो लोग सिग्मा भी बोलते हैं। अब जैसे 2008 टाइप इवेंट हुआ था जब मार्केट 55% गिरा था, तो लोग बोलते थे भाई इट्स लाइक अ 3 सिग्मा इवेंट। अगर आप टीवी में या न्यूज में या आप कभी कहीं पढ़ोगे या देखोगे, पीपल वुड हैव सेड इट्स अ 5 सिग्मा इवेंट, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। सिग्मा जो है वो बेसिकली है 20%। 5 सिग्मा इवेंट मतलब 5 into 20 -100, राइट। तो मतलब आपके 15% के रेस्पेक्ट में आप पूरे नेगेटिव में चले गए, राइट। सो इट बेसिकली लाइक कि कितना टाइम ऑफ द वोलेटिलिटी जो है आपका रिस्क जो है दैट इज अल्टीमेटली गवर्न्ड बाय दिस वोलेटिलिटी, राइट। इस कंसेप्ट को यूज करके आज हम लोग पूरे करीब 1-1.25 घंटे जो है यूज करेंगे टू एक्चुअली बिल्ड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट for making lot of strategies, you know, discussing lot of things on futures or discussing lot of things in the options. कोई questions अभी तक? Okay, let's move ahead. Discuss करूँगा futures में using this concept of standard deviation, और उसको आप extrapolate करके आप चाहिए तो जितनी चाहे आप strategy बना सकते हो। एक strategy जो मैं discuss करूँगा वो है calendar spreads, और दूसरी जो मैं डिस्कस करूंगा वो है ट्रेंड फॉलोइंग। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी इन फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में क्या होता है कि अगर आप आज एनएसई के करेंसी फ्यूचर्स को देखो तो काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। यू नो, आपके जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं जो कि आज एक्चुअली एक्सपायर हुए हैं, फिर अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, राइट। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अपना एक प्राइस होता है जिसमें फ्यूचर की प्राइसिंग होती है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है और मेरे अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है, राइट। अब मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, करेंसी फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं मैं, और मान लीजिए आपका जुलाई का और अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट अपने लिए फॉर अ प्रॉप ट्रेडिंग या आपके क्लाइंट्स के लिए ऐसे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जिसमें आप जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट को खरीद सकते हो और अगस्त को बेच सकते हो, या फिर अगस्त को खरीद सकते हो, जुलाई को बेच सकते हो, और आप एक रिस्क फ्री आर्बिट्राज जिसको बोलते हैं, जिसमें 12% 15% से अपने को ज्यादा रिटर्न मिल सके, उस तरह का आप एक आर्बिट्राज क्रिएट कर सकते हो, राइट। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में डेली आती है। डेली क्या, मैं तो अगर स्क्रीन में मतलब जिस तरह से हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं, हर 5 मिनट में 10 मिनट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल ही आती है। उसका रीजन ये होता है कि बेसिकली सब लोग ये आर्बिट्राज नहीं कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको खाली जुलाई के फ्यूचर से मतलब है। कोई एक बड़ा सडनली यू नो करेंसी ट्रेडर आ गया जिसको खाली जुलाई का फ्यूचर बेचना है, तो वो उठा के जुलाई का फ्यूचर ही बेचते रहेगा, उसके अगस्त के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं। अचानक से आप देखोगे दोनों का स्प्रेड जो है लार्ज हो गया, है ना। और उस वक्त जो है आपको राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि भाई अब लार्ज हो गया, अब टाइम आ गया मेरे लिए घुसने के लिए। यूजुअली अभी से पहले लोग क्या करते कि ठीक है स्क्रीन ट्रेडिंग करते थे, स्क्रीन में लगा दिया जुलाई, स्क्रीन में लगा दिया अगस्त, और देख रहे भाई कब मूव कर रहे हैं, कब इलाज हो रहा है, कब नहीं। जबकि हम लोग इसी चीज को आज जो है थोड़ा सा और सिस्टमैटिक ढंग में समझेंगे, ताकि आप जब अगली बार उसको यूज करो तो आप रियली जो है इसको बड़े सिस्टमैटिक ढंग से ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं हर 5 मिनट, राइट, जुलाई का और अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर्स का प्राइस देख रहा हूँ करेंसी, राइट। सपोज मेरा मार्केट खुला 9 बजे और लेट सपोज आज का है मेरा 27 जुलाई का। सपोज मेरा जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा था से 54.95, राइट, फ्यूचर्स का प्राइस, और सपोज मेरे अगस्त का प्राइस ट्रेड कर रहा था 55.25, ठीक है। 5 मिनट बाद में वापस से स्नैपशॉट लेता हूं 9:05 पे, और सपोज ये प्राइस आते हैं सपोज मैं इस तरह से हर 5-5 मिनट में ट्रैक कर रहा हूँ
और ये मेरे जुलाई के प्राइस आ गए, ये मेरे अगस्त के प्राइस आ गए, राइट। अब आप इस पे किस तरीके का स्प्रेड स्ट्रेटेजी कर सकते हैं? एक तो पहले आप ये कीजिए कि इन दोनों का एक रेशियो निकालिए। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो क्या होगा? अगर मैं मान लीजिए जुलाई डिवाइडेड बाय अगस्त कर रहा हूँ, जुलाई का प्राइस डिवाइडेड बाय अगस्त का प्राइस, राइट, और 54.95 डिवाइडेड बाय 55.2 का, सपोज ये वैल्यू आ गई 0.96, 54.80 डिवाइड बाय 55.20, सपोज ये वैल्यू आ गई 0.97। मैं कुछ रैंडम नंबर दे रहा हूँ बट इट विल बी क्लोज टू दिस, राइट। सपोज ये आपके रेशियोज की वैल्यूज आ गई फॉर द जुलाई कॉन्ट्रैक्ट और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब आप क्या कीजिए, ये सारे नंबर्स का मैं एवरेज निकाल सकता हूं। एवरेज इज मीन मतलब ऑल दिस नंबर को सम करके डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, राइट, तो मेरे को इसका एवरेज मिल जाएगा। सपोज इसकी एवरेज आती है 0.95, राइट। और अगर आप एक्सेल में इसी चीज का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, आप खाली एसटीडीई करोगे, मैं आपको एक्सेल में दिखाऊंगा, बट अल्टीमेटली अगर मान लीजिए आप एसटीडीई करते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन, और सपोज इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है 0.02, राइट। अभी हमने कंसेप्ट ऑफ वोलेटिलिटी, कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन को पढ़ा था, जिसके थ्रू हमने ये पता किया था कि भाई 0.95 तो आपका एवरेज है, बट इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 0.02 है। इसका ये मतलब है कि भाई देयर इज अ 95% चांस, देयर इज अ 95% चांस कि ये जो नंबर है, ये स्प्रेड जो यहाँ देख रहे हैं, ये 0.91 और 0.99 के बीच में रहेगी, क्योंकि अगर ये 0.95 मेरा एवरेज है, यहां से मैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लेफ्ट में जाऊंगा, राइट, तो 0.95 इंटू 2 टाइम्स 0.02 तो हो गया मेरा 0.99, और अगर मैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन राइट की तरफ जाऊंगा, यानी 0.95 से -0.04 तो 0.91 आ गया मेरा, राइट। जब तक ये रेशियो इन दोनों के बीच में है, 0.91 और 0.99 के बीच में, इसका ये मतलब है कि भाई इट इज विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, कि इतना तो रेशियो रह ही रहे। सपोज ऑल ऑफ अ सडन किसी ने जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखा, राइट, उसने बेच दिया और आपका अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट वहां का वहीं खड़ा है। सपोज आप ये चीज को 3:05 पे देख रहे हो और 3:05 पे अचानक से ये वाला जो वैल्यू है ये आपको स्क्रीन पे दिखा 53.25 और ये वाली वैल्यू आपको दिखी 54.50, राइट, और ये जो रेशियो है ये हो गया आपका 0.89, राइट। आपको पता है कि भाई ये रेशियो जो है 0.91 और 0.99 के बीच में रहनी चाहिए। अगर ये रेशियो 0.89 हो गई तो इसका ये मतलब है कि ये इट्स मोर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इवेंट, 95% ऑफ द प्रोबेबिलिटी की ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो गई है तो इट हैज क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी, राइट, इट हैज क्रिएटेड अ रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी, जहां पर आपके जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने जरूरत से ज्यादा बेच दिया, राइट। सो द आर्बिट्राज हियर इज, फिर आप क्या करोगे कि जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप खरीद लोगे और उसके अगेंस्ट में आप अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बेच दोगे। मेक सेंस? बिकॉज आपकी ये जो रेशियो है ये 0.89 पे पहुंच चुकी है, राइट। यूजुअली इसको हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, ये ऊपर से क्लियर है, डेविएशन में 0.02 था तो फिर 4 पॉइंट में प्लस किया उसको, सॉरी 2 सिग्मा 0.02 था ना आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, तो मुझे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। रिमेंबर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इज ओनली 66%, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इज 95%। we are taking maximum chances. We are taking chance which is should not happen in any normal condition. We are taking only the 5% chance, right? We are only bothered about कि वो 5% chance हमारे पास कब आएगा। दो सिग्मा का क्लियर है किसी को? 2 सिग्मा मतलब कि 4 पॉइंट 0.02 is 1 सिग्मा into 2 अगर आप करोगे तो 0.04 हो गया, राइट। तो आपका अगर एवरेज 0.95 है तो वहां से प्लस 0.04 हो गया 0.99, या फिर 0.04 लेस अगर आप कर दोगे 0.95 है तो 0.91,
राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 2 अगर आप करोगे तो उतना जो है आपको गैप छोड़ना पड़ेगा, राइट, बिकॉज दैट स्टिल कम्स विद इन अ नॉर्मल काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि इन दोनों के फ्यूचर्स के बीच में हो सकती है, राइट। सो द वे टू डू दिस इन रियलिटी इज दैट कि आप क्या करते हो कि एक आप मैथमेटिकल टर्म्स में इसको जी स्कोरिंग बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप क्या करते हो, जो भी करंट आपका रेशियो है, भाई जो भी आपका जुलाई डिवाइडेड बाय अगस्त का रेशियो चल रहा है, ठीक है, उसको आपने ले लिया जो मेरा करंट रेशियो चल रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अभी अगर मेरा करंट रेशियो चल रहा है 0.91, तो ये मैंने ले लिया, राइट। इससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया कि मेरा एवरेज कितना है। तो इन दिस केस हम लोगों का एवरेज जो आ रहा था रेशियो का, कि एवरेज रेशियो आ रहा था 0.95 का, राइट। तो अपना जो एवरेज रेशियो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन इसके इसमें कितना है 0.02, राइट। ये जो नंबर है अपना Z स्कोर, ये यूजुअली +2 और -2 के बीच में रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। अगर आप देखोगे भाई एवरेज अगर 0.95 था, ठीक है, और अगर ये वाली चीज 0.95 है, मान लीजिए आपका करंट रेशियो भी 0.95 है, तो Z स्कोर 0 हो गया, राइट। अगर आपका करंट रेशियो मान लीजिए 0.99 चला गया, माइनस आपका एवरेज कितना है 0.95, तो डिफरेंस कितना हो 0.04, और आपका स्टैंडर्ड डिवीजन 0.02 है, तो 2 हो गया, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये जो Z स्कोर की वैल्यू है ये +2 और -2 के बीच में रहेगा। अगर ये +2 से ऊपर चली जाती है या फिर अगर ये -2 से नीचे चली जाती है, अगर -2 से नीचे चली गई तो आप क्या करोगे, जुलाई को आप खरीदोगे, अगस्त बेचोगे, और अगर ये +2 से ऊपर चली गई तो ऑपोजिट आप करोगे, आप जुलाई को बेचोगे और अगस्त को खरीदोगे। मतलब +2 से अगर ऊपर चली गई या वैल्यू आपकी Z स्कोर की, तो इसका मतलब है ये रेशियो बहुत ऊपर चला गया, राइट। ये रेशियो एक्चुअली होना चाहिए था 0.95 के अराउंड, बट हो सकता है ये रेशियो हो गया 1.03, मतलब किसी ने जुलाई को बहुत ज्यादा खरीद लिया, अगस्त वहीं का वहीं पड़ा हुआ, राइट। तो आप फिर जुलाई को बेच सकते हो और फिर आप अगस्त को खरीद सकते हो। तो ये चीज स्क्रीन ट्रेडिंग को नहीं करके आप इस चीज को जो है और ज्यादा मैथमेटिकली रिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसका मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको एक्सेल में दूंगा ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आए कि ये चीज किस तरह से हो रहा है, और वो मैंने लाइव मार्केट करना है 3 बजे के बाद, ये सॉरी ये करना है 3 बजे के बाद, कभी भी आंसर की ऑप्शन, कभी भी जब भी आपको अपॉर्चुनिटी एवरेज कब लोगे, मतलब 2-4 घंटे ट्रेड होगी तभी 4 बजे लोगे ना। गुड आई। यूजुअली लोग क्या करते हैं, बहुत तरीके के तरीके होते हैं करने के लिए, बट यूजुअली क्या करते हैं लोग रोलिंग बेसिस पे लेते हैं। भाई पिछले अगर मैं मान लीजिए 5-5 मिनट का ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने पिछले 5-5 मिनट का 40 पॉइंट ले लिया और उसका मैंने एवरेज निकाल लिया, राइट। अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी नहीं कर रहे हो, आपको डेली पे ट्रेड करना है, तो आपने डेली का जो रेशियो है वो निकाल लिया, यू नो, फॉर द लास्ट 20 डेज, और उसका आपने एवरेज लिया। तो आप कितने पीरियड का एवरेज लोगे वो डिपेंड करेगा आप किस तरह के ट्रेडर हो। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेडर हो तो आप 5-5 मिनट के पिछले 20 पॉइंट का या 40 पॉइंट का एवरेज लोगे। अगर आप डेली के ट्रेडर हो या आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो आप डेली का जो है 20 पॉइंट का या 40 पॉइंट हो, राइट। कितने पॉइंट लेने हैं यूजुअली वैरी फ्रॉम, लोग 20 पॉइंट भी लेते हैं, 30 पॉइंट भी लेते हैं, 40 पॉइंट भी लेते हैं। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ एटलीस्ट द लास्ट 20 पॉइंट लेने के लिए, राइट, टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली एवरेज कितना है। अब मैं एक छोटा सा आपको डेमो देता हूँ एक्सेल पे। ये एक्चुअल प्राइसेस है, ये मैंने ब्लूमबर्ग से उठाए, तो ये मतलब थ्योरेटिकल प्राइसेस नहीं है। बाकी ये जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस हैं और ये अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस हैं फॉर दिस डेट, 2 जुलाई का 9 बजे का, 9:05 का, 9:10 का। ये बेसिकली प्राइसेस है जुलाई का और अगस्त के फ्यूचर्स के प्राइस, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग रेशियो निकालेंगे, जुलाई डिवाइडेड बाय अगस्त, राइट। तो ये हम लोगों का पहले तो रेशियो निकल गया ऑफ द जुलाई प्राइस डिवाइडेड बाय दैट ऑफ द अगस्त प्राइस।
और इस रेशियो को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ ऑल द वे टू द बॉटम, राइट। तो ये मेरे सारे हर 5-5 मिनट के रेशियो निकल गए ऑफ द जुलाई प्राइस एंड द अगस्त प्राइस, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि लास्ट के 20 पॉइंट्स के 20 पॉइंट को होली ग्रेल नहीं है, बट मैं यूजुअली 20 पॉइंट प्रेफर करता हूँ। आप 40 पॉइंट में भी ट्राई कर सकते हो, 60 पॉइंट में भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं लास्ट के 20 पॉइंट्स को लेके, राइट, मैं उसका Z स्कोर निकालूं, ठीक है। तो लास्ट के 20 पॉइंट्स को लेके अगर मैं उसका Z स्कोर निकालूं तो Z स्कोर की क्राइटेरिया मेरी क्या है कि भाई आई हैव टू टेक फॉर द करंट रेशियो, राइट। तो मेरा करंट रेशियो जो है वो हो गया ये दिस पॉइंट, क्योंकि अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, राइट, माइनस मैं एवरेज कर दूंगा पिछले 20 पॉइंट का, राइट, डिवाइडेड बाई राइट। तो मैंने क्या किया कि करंट रेशियो लिया माइनस उसका एवरेज कर दिया पिछले 20 पॉइंट का, डिवाइड कर दिया उसको उसी के स्टैंडर्ड डिविएशन। 20 पॉइंट का स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आपको निकालना है, जिसके बारे में अभी हमने इतना डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आप खाली STDEV अगर आप करोगे एक्सेल में तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका निकल जाएगा, राइट। तो इससे मेरी जो है Z स्कोर निकल गई। और जैसे कि मैंने बोला था कि Z स्कोर की वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम +2 और -2 के बीच में रहती है, राइट। अब मैं इस वैल्यू को लूंगा और ऑल द वे अप टू द बॉटम एक्सटेंड कर देता हूं। ये मैंने प्राइस निकाल रखा है 25 जुलाई तक का 12:30 बजे तक का। अब अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं, राइट, आप ये देखोगे कि ये ऊपर की तरफ में +2, ये देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देख रहे हो अराउंड द मीन रहते हैं, क्योंकि आप जुलाई और अगस्त का अल्टीमेटली आप सेम चीज ट्रेड कर रहे हो, आप USD INR ट्रेड कर रहे हो, एक महीने का खाली डिफरेंस है उनके लिए। काफी सारे टाइम में जब ये -2 से नीचे आते हैं और काफी सारे टाइम में जब ये +2 से ऊपर जाते हैं, राइट। तो जब ये +2 के ऊपर गया, हमें पता है कि जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने बहुत ज्यादा खरीद लिया एज कम्पेयर टू अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और जब भी ये -2 से नीचे गया, इसका मतलब है कि जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने ज्यादा बेच दिया एज कम्पेयर टू अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर ये वाली चीज में एक पर्टिकुलर इवेंट पे लूं, यहाँ पे मैंने एक इवेंट लिया है इस तरह का, बट आप चाहिए तो और इवेंट भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, और ये एक्चुअली मैंने मार्केट से डेटा उठाया है, इट्स नॉट मेड बाय मी, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 जुलाई को 1:50 पे, सॉरी 1:45 पे इन दोनों का जो स्प्रेड है, राइट, उसका आपका Z स्कोर हो गया था 2.21, राइट। 2.21 जैसे ही आपका स्प्रेड हुआ तो आपको पता है कि भाई जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट